So this is our NPO का lecture number 3. So अपना NPO का lecture number 3 से अपन शुरू कर रहा है. पहले 2 लेक्चर को रिवाइज करना जरूरी है. So I believe that I can get a reply now. NPO क्या टाइप का पर्सन था अगर आप लोग को याद है? Voluntary association of persons. NPO is nothing but it is a voluntary association of persons. NPO is a voluntary association of persons whose basic let's all reply and concept. Social welfare. To promote art culture. Voluntary association of persons whose basic motive is Social welfare. welfare. promotion of art culture and recreational activities. Okay, let's go together. ना आप लोग इतना pieces में क्यों बोल रहे हैं? एक साथ बोलना नहीं आते क्या? NPO, what kind of person? Let's all speak. Voluntary association. Voluntary association of persons. NPO is a voluntary association of persons whose motive is Social Social welfare. welfare. Not to earn profit. Art, sports, culture, recreational social welfare activities. तक बोला है. उसके बाद और Or promotion of of arts, art, culture, and recreational recreational activities. sports, culture, Recreational activities. ठीक है. And not to earn profit. And not to earn. Profit. So NPO is a voluntary association of person whose motive is social welfare and not to earn profit or promotion of art, sports, culture जो भी है. अब इस NPO का लोग को अपन क्या बोलेंगे? members. NPO का लोग को हम लोग बोलेगा members. ठीक है. एंड ये मेंबर लोग किसको इलेक्ट करता है? Executive or managing committee. मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव Committee. ये मेंबर का पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं? Capital fund और general fund. Under general fund. कैपिटल फंड और General fund. So NPO is a voluntary association of person whose motive is social welfare or promotion of arts, sports, culture, etc. and not to earn profit. और NPO का ओनर्स लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंबर्स. और ये मेंबर लोग किसको इलेक्ट करता है? Managing और executive committee. और ये मेंबर का पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं? Capital fund और General general. So NPO is a voluntary association of person whose motive is social welfare and not to earn profit or promotion of arts, sports, culture. ये सब है. NPO का ओनर लोग को क्या बोलता है? मेंबर. मेंबर किसको इलेक्ट करता है? मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव committee. And now this NPO is organized as Club, societies, charitable societies, charitable trust. I hope this is okay. तो ये NPO को चलाता कौन है? Members. पर चलाने के लिए चाहिए क्या? पैसा. NPO को चलाता कौन है? मेंबर्स. और चलाने के लिए अपने को क्या चाहिए? पैसा. तो ये सोर्सेज ऑफ फंड्स एक NPO के लिए क्या क्या होगा? हम लोग इसका बात करने वाला है. Members. members एंड मेंबर्स जो फंड है वो 3 तरीका से देता है. Entrance fee. एंट्रेंस फी, Subscription like membership fee. ठीक है. यहाँ तक हाँ. ये एंट्रेंस फी NPO के लिए क्या है? Income और अगर not approved तो liability. पर अगर ये एंट्रेंस फी इज नॉट येट अप्रूव्ड, तो liability. approved, then it becomes a Liability. subscription is our Income. and life membership Liability. is our liability. याद हो गया सबको? यहाँ तक अच्छा से सॉर्टेड है सबका? हाँ. सेकेंड मेजर सोर्स Donation. एंड अपन डोनेशन में 3 आरो खींच लेता है. General, specific. General donation is our Income. Specific. Liability. एंड इससे रिलेटेड टॉपिक को अपन बोलता है Fund-based accounting. एंड द लास्ट इज Legacy. legacy is basically the amount that we received
Will of the deceased From the person. From the will will of a of deceased from the person. will of the deceased person. From the will of a Deceased person. Deceased person. अगर ये लेगेसी के लिए कोई स्पेसिफिक पर्पस है तब liability. Liability. लाइबिलिटी अगर कुछ नहीं बोला है that Income. will be Income. considered Income. and इसका सिमिलर एक इसके जैसा ये Government grant. Government grant. Government grant. I hope everyone is sorted till here. किसी को कोई भी तरह का confusion नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ भैया. अब what are the financial statements of an NPO? Let's all keep our focus high. Receipts and payments. Receipts and payments, income and expenditure, balance sheet. Balance sheet. Receipts and payments, Income and Income and expenditure. expenditure, income and expenditure. Balance sheet. balance sheet. Balance sheet. ये सब याद है पूरा बैच को? हाँ. Is everyone thorough till here? See, it's important that you're doing a live class and you reply to me very quickly. Is everyone thorough till here? All the हाँ भैया. हाँ भैया. Yeah. So financial statements of NPO are of three types: receipts and payments, income and expenditure, and balance sheet. I hope this is okay. अब receipts and payments को shortcut में हम लोग क्या लिख रहे हैं? RNP. 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 This RNP is nothing but it is a summary of cash book. Cash book. It is a summary of Cash book. Cash book. कैश बुक क्या टाइप का बुक होता है ये सबको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या टाइप का बुक Subsidiary book. Subsidiary. बुक Book. record only what kind of transaction Cash Cash transaction. transactions. इस बुक का एक समरी बनाने को हम लोग क्या बोलते हैं रिसीप्ट्स एंड Payments. Payments. इसलिए अगर आपको सारा पॉइंट्स याद आ रहा है receipts and payments will record only what kind of Cash transaction. Cash Cash transactions. transactions. Cash transactions. it is prepared on what basis let's not make a mistake Cash Cash basis. basis. Cash basis. Cash basis. it is prepared on cash basis it records Both capital and Both capital and revenue items. Both capital and capital as well as revenue item. Revenue items. revenue expense. अपना जो इनकम एंड एक्सपेंस होता है ना सारा डे टू डे वाला वो होता है रेवेन्यू आइटम वो क्या आइटम होता है रेवेन्यू आइटम Revenue. और अपना जो एसेट्स एंड Liabilities. Liabilities. Capital items. वो क्या टाइप का आइटम होता है Capital Capital items. items. Capital item. so when receipts and payments records only cash transaction it is prepared on cash basis and records both capital as well as revenue item Revenue items. and it's an 8 point order and it records all the cash received or paid in the current year Current year. करंट ईयर में जितना भी रुपया आया है गया है सारा रिकॉर्ड होगा ऑल्दो द ट्रांजैक्शंस मे बी ऑफ Current year or next year. Previous year or next Current year. Or next year. तो कोई ट्रांजैक्शन पिछले साल का भी हो सकता है आगे वाले साल का भी हो सकता है पर पैसा अगर इस साल आया है तो वो सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं ये आपका करंट ईयर है कोई प्रीवियस ईयर का पैसा लास्ट ईयर का पैसा अभी दे रहा है तो वो कब रिकॉर्ड होगा करंट ईयर में अगर कोई नेक्स्ट ईयर का पैसा करंट ईयर में दे रहा है तो वो कब रिकॉर्ड होगा अभी रिकॉर्ड होगा पर ये है कब का एक है पिछले साल का एक है आगे साल का पर दैट डज नॉट मैटर क्योंकि पैसा आया कब है इस साल. इस साल तो आरएनपी बोलते हैं वॉट एवर मनी यू हैव रिसीव्ड इन द करंट ईयर वो सारा रिकॉर्ड होगा वॉट एवर मनी यू हैव रिसीव्ड इन दिस फाइनेंशियल ईयर इट रिकॉर्ड होगा और वो पैसा पिछले साल का भी हो सकता है इस साल का भी हो सकता है अगले साल का भी हो सकता है समझ में आया क्या बोला या अभी भी डाउट्स है मन के अंदर समझिए भैया. समझ के भैया. ये रिकैप तो इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ा सकते रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स रिकॉर्ड्स ओनली व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस Cash Cash transaction. Cash transactions. on the other hand income and expenditure records both Cash and Cash non-cash and non-cash. transactions. Cash and non-cash transactions. non-cash transactions is this okay it records both Capital and revenue items. Capital and revenue items. revenue as well as capital. Capital. For income and expenditure records only Only the revenue Revenue item. Revenue items. it records only
revenue item. Item. It records only revenue item. I hope you know the meaning of revenue in capital. Revenue मतलब daily income and expenditure, subscription, salary, rent, interest, ये सब. पर आप फर्नीचर खरीदा, आपको स्पेसिफिक डोनेशन मिला, आप मशीनरी खरीदा, ये सब क्या आइटम हो गया? कैपिटल आइटम हो गया. I hope this is clear to the entire batch. हाँ भैया. So receipts and payments is prepared on what basis? Not need a Cash Cash basis. basis. Cash Cash basis. basis. On the other hand, income and expenditure is prepared on Accrual what basis. Accrual basis. Accrual basis. Are you guys getting this clear inside your head? हाँ. And now receipts and payments will record only of what? Sorry, it will record all the cash received During or the current paid year. during the. Current. year. अब वो ट्रांजैक्शन प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, करंट ईयर का भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी हो Next सकता है. year. पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर विल रिकॉर्ड ओनली द ट्रांजैक्शंस ऑफ. Current year. Current year. Current year. You're getting this understanding. हम क्या पढ़ाया? आपको हाँ. एग्जाम में हाँ, क्या बना के देगा? Receipts and and payments. RNP. आपको उससे दो चीज बनाना है. क्या क्या दो चीज बनाना है? Income and Income and expenditure expenditure balance. Income and balance expense sheet. and balance sheet. Receipts and payments is prepared on what basis? Cash basis. Cash basis. Cash basis. Income and expenditure is prepared on Accrual what basis. Accrual Accrual basis. basis. So in short, आपको अपना कैश बेसिस को किस में कन्वर्ट करना है? Accrual Accrual basis. basis पे. And the balance sheet will have all the. Capital. Assets and liabilities. Assets and liabilities. So this are what kind of items? Capital item. Capital Capital items. This will have all the Revenue income and items. Revenue items. expenditure. So this is what kind of item? Revenue Revenue items. items. अब बोलो यार, यहाँ तक थ्योरी सबको लर्न हो गया है? नहीं हुआ प्लीज रिप्लाई करना. रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आप लोग से. याद है भैया? याद याद है भैया. अब हम लोग का टॉपिक्स टू कवर क्या क्या है एक बार देखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हम लोग आज एक टॉपिक तो पूरा खत्म करें. टॉपिक्स टू कवर के अंदर पहला टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग. ये आपको याद है? अगर कोई डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया है, उसका अकाउंटिंग करने को क्या अकाउंटिंग बोलता है? Fund based Fund accounting. based accounting. सेकेंड इज Subscription. सब्सक्रिप्शन. तीसरा इज Cost cost of of material consumed. Fourth is preparation of RNP. तो खाली RNP बनाने का भी एक सम आता है, वो आज हम लोग ये आज कर ही लेगा. खाली RNP बनाने वाला सम हम लोग आज कर लेगा. इज दिस ओके फॉर एवरीवन? हाँ भैया. फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड व्हाट. बोलो जल्दी जल्दी बोलो. Balance sheet. Balance ये sheet. जो पहला 4 टॉपिक है, ये कितना मार्क्स का आता है? 3 mark का. 3 mark. और ये आता है अपना कितना 6 मार्क्स है? 6 mark. और लास्ट बोर्ड अटेम्प्ट में कितना मार्क्स के लिए आता है? 4 mark का. 4 marks. ये अपना सेटअप है. आई होप दिस इज ओके फॉर द एंटायर बैच. अब अपना प्लान देखो आगे का क्या है. अपन आज ये आरएनपी का सम करेगा. सम करेगा तो मजा आएगा क्लास के अंदर. तो इसका एक ही सम है, एक इलस्ट्रेशन है, एक बैक साइड है, दोनों कर लेगा आज. आई होप दिस इज ओके फॉर माय एंटायर बैच. क्या बोला, समझ में आ गया? हाँ. हाँ भैया. भैया. और ये सब्सक्रिप्शन का थ्योरी वापस से रिवाइज करके हम 2 एग्जांपल करवाएगा आप लोग को आज. अब याद आ रहा है आप लोगों को? लास्ट क्लास सब्सक्रिप्शन शुरू किया था हम. हाँ. हाँ. आपको एग्जाम में क्या दिया हुआ रहेगा? RNP. Receipts and payments. RNP. ये हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन का छतरी है, ये मेरा स्पेशलिटी है. आपको एग्जाम में क्या दिया हुआ रहेगा? RNP, रिसीट्स एंड पेमेंट्स. आई होप दिस इज ओके. गाइस कम रिप्लाई, क्लास के अंदर बोर करता है एक ऑनलाइन क्लास को. ये क्या दिया हुआ रहेगा? आप जल्दी से आंसर करिए प्लीज. RNP. RNP. और अपने को निकालना क्या है? Income and Income and RNP. expenditure. Income and expenditure. So you will be given receipts and payments and you have to calculate the income and expenditure. तो किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं? Subscription. के बारे में. तो सब्सक्रिप्शन के अंदर अपने को क्या चीज का डेटा दिया हुआ रहेगा? अगर आप रिप्लाई कर सकता है RNP का. RNP का मतलब कितना रुपया कैश मिला है इस साल में. इस साल. आई होप दिस इज ओके. पर हाँ. अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है जो बोलेगा
एक्चुअल इनकम इस साल का कितना? जो इस साल का वो लिखो। आई होप दिस इज ओके फॉर माई एंटायर बैच। हाँ सो अपने को एग्जाम में किसका डेटा दिया हुआ रहेगा? लेट्स ऑल स्पीक Receipts and payments. रिसीव्स एंड पेमेंट्स का। अपने को उससे बनाना क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आई होप दिस इज ओके फॉर माई एंटायर बैच। हाँ अब हम बोल रहे हैं मेरा रिसीव्स एंड पेमेंट्स इज 90,000। इसका मतलब मेरा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना रुपया बोला हम लोग? 90,000. 90,000 ये 90,000 इज आवर रिसीव्स एंड पेमेंट्स। क्या ये मेरा बैच को समझ में आता है? प्लीज बोलो जल्दी से। हाँ भैया हम लोग को रिसीव कितना रुपया हुआ है? 90,000। अब ये 90,000 में तीन चीज हो सकता है। एक Last इसी year साल का पैसा हाँ और एक लास्ट ईयर Last का year पैसा जो कब मिला है? करंट Current ईयर इस में। साल. करंट ईयर का करंट ईयर में, लास्ट ईयर का इस साल में, और नेक्स्ट ईयर का भी कब मिला है? करंट इस साल में. तो ये 90,000 में तीन चीज मिला हुआ हो सकता है। एक इस साल का पैसा इस साल, एक लास्ट ईयर का पैसा इस साल, और एक इस साल का पैसा इस साल मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए। क्या बोला? ये समझ में आता है पूरा बैच को? हाँ भैया। हाँ भैया तो हाउ मच सब्सक्रिप्शन हैव वी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर? 90,000. 90,000 बहुत बढ़िया। कैन आई गो अहेड गाइस? जल्दी नहीं करना है। कैन वी गो अहेड? आराम से बोलो, आराम से बोलो। हाँ भैया. हाँ भैया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 4,000 रुपया। आप मेरे ऊपर एकदम ध्यान देगा, जल्दी जोश में नहीं आएगा। अब ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये रुपया मिल गया या मिलना बाकी है? मिलना बाकी. मिलना बाकी है। सोचेगा और बोलेगा, नहीं बोलेगा अब से नहीं होगा। बोलना जरूरी है। अब घर पे बोलो, म्यूट पेपर बोलेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है साल के शुरू में, जो सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है। कितना रुपया मिलना बाकी है? 4,000. 4,000। तो ये कब का रुपया है? कब का है? इस साल का या लास्ट ईयर? लास्ट ईयर का. लास्ट ईयर का। तो ये है लास्ट ईयर का, पर मिलेगा कब? इस साल. इस इस साल अब सुनो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग एक एरो खींच रहे हैं यहां से। विल एज्यूम कि हम लोग को पूरा 4,000 मिल गया। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि 4,000 जो लास्ट ईयर का था वो पूरा का पूरा इस साल मिल गया है। मतलब इस 90,000 के अंदर कितना रुपया मिला हुआ है? 4,000. 4,000 तो हम लोग क्या कर देगा? माइनस. माइनस क्योंकि ये कब का है? लास्ट Last ईयर year का, जो खाली इस साल मिला है। क्योंकि ये इस साल मिला है तो ये 90 के अंदर मिला हुआ है। लेकिन अगर हम ब्रैकेट में बोले आउट ऑफ दिस ओनली 3,000 वाज रिसीव्ड, तो भाई लोग इस बार क्या एरो में 4,000 जाएगा क्या? नहीं, 3,000 जाएगा। 3,000 4,000 में से मिला कितना है? 3,000. 3,000 तो माइनस भी कितना होगा? 3,000. 3,000 अब देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं। तो एंड ऑफ द ईयर में मेरे पास अभी भी प्रीवियस ईयर का कितना रुपया आउटस्टैंडिंग है? 1,000 रुपया. 1,000 तो कुछ रुपया लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है और कुछ रुपया इस साल का आउटस्टैंडिंग होगा, जो होगा करंट ईयर। और ये हो जाएगा आपका टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। भाई लोग लास्ट ईयर का कितना रुपया आउटस्टैंडिंग है ये बताओ जल्दी से। 4,000 रुपया। 4,000 में से इस साल कितना मिला है? 3,000. 3,000 माइनस कितना रुपया करेगा? 3,000। 3,000. क्योंकि ये 90 के अंदर मिला हुआ कितना रुपया है? 3,000. 3,000 समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ भैया. कितना रुपया अभी तक नहीं मिला है? 1,000 रुपया. 1,000 पर अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो हम एरो में कितना रुपया लिखता? 4,000. 4,000 और तब मेरा प्रीवियस ईयर क्या बन जाता? 0. क्योंकि लास्ट ईयर का सारा रुपया इस साल ऑलरेडी आ चुका मिल गया। है. तब ये स्टेटमेंट आपका एग्जाम में लिखा हुआ नहीं होगा। अब बोलो यहां तक क्या मेरा हर एक स्टूडेंट को याद हो गया है क्या? हाँ भैया.
Can I go ahead? हाँ भैया. हाँ भैया. Outstanding subscription at the end of the year 5,000. तो लास्ट डे पे कितना रुपया आउटस्टैंडिंग है? 5,000. 5,000. तो मेरा बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और आपका भाई का जुगाड़ है ये. क्या वर्ड बोला हुआ है यहाँ पे? एट द एंड ऑफ द ईयर. मतलब एंड में, ईयर के एंड में कितना रुपया आउटस्टैंडिंग है? 5,000. तो हम ये बॉक्स में लिखेगा. मतलब मेरा प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर मिला के कितना रुपया है? 5,000. 5,000. लेकिन अगर हम इसको बोले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 5,000, तब ये बॉक्स में नहीं जाएगा, तब ये कहां पे जाएगा? Current year. Current year. करंट ईयर में कितना रुपया जाएगा? 5,000. 5,000. तो आपको अब एक चीज याद रखना है, करंट ईयर के लिए अपना एग्जाम में क्या वर्ड आएगा? For or For. at. For. और बॉक्स के लिए क्या वर्ड आएगा? At. At. आजाद या आज ऑन. आज ऑन का मतलब होता है अभी तक का, विच इज प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर. पर अगर हम कोई चीज बोले फॉर द ईयर, मतलब वो उस साल का बात कर रहे हैं. ठीक है. अभी प्रीवियस ईयर कितना रुपया है? 0. करंट ईयर कितना रुपया है? 5,000. 5,000. बॉक्स में भी कितना रुपया है? 5,000. 5,000. तो करंट ईयर क्योंकि 5,000 रुपया है, तो करंट ईयर का कितना रुपया नहीं मिला? 5,000. 5,000. इसको यहाँ पे क्या करते हैं? Add. प्लस. प्लस कर देगा. आप लोग को सिंबल लर्न होना चाहिए था. क्या सिंबल लर्न करवाया था हम लोग? माइनस Minus प्लस. plus. Minus plus minus. माइनस. कुछ याद आया सबको? हाँ. माइनस प्लस प्लस माइनस. यस या नो? हाँ. हाँ भैया. तो यार अपना आउटस्टैंडिंग कितना है बिगिनिंग ऑफ द ईयर? रिप्लाई नाउ. 4,000. 4,000. 4,000. क्या क्वेश्चन में कुछ भी बोला है क्या? नहीं. नहीं. तो आरो में भी कितना आ गया? 4,000. 4,000. प्रीवियस ईयर क्या हो गया? 0. 0. अब 0. बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना रुपया है? 5,000. 5,000. प्रीवियस ईयर 0 है, तो टोटल भी कितना हो गया? 5,000. और ये 5,000 रुपया को हम लोग वहां जाके क्या कर देगा? प्लस कर देगा. Plus. अब बोलो समझ में आने लगा है या नहीं लगा? जल्दी से आंसर कर दो. आ गया. आ गया. आ गया भैया. एडवांस सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. अगर शुरू में रुपया एडवांस में मिल गया है, तो ये रुपया कब मिला था? ये मेरा क्वेश्चन है. Last year. लास्ट ईयर. लास्ट ईयर पर है कब का रुपया? इस साल इस साल का. साल का. तो इसको क्या करेगा? प्लस. प्लस. Plus. क्योंकि ये आरएनपी में लास्ट ईयर था, पर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस साल आएगा, क्योंकि ये है कब का पैसा? इस साल का. इस साल इस का. साल का. लास्ट ईयर का पैसा मिला. लास्ट ईयर पैसा मिला है. पैसा कब मिला है? लास्ट ईयर. लास्ट ईयर. पर इनकम कब का है? इस साल का. इस साल का. अब तो बताओ आपको समझ में आने लगा है या नहीं लगा? हाँ. आ गया. एंड लास्ट चीज, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर. अब इसका पैसा कब मिला है? इस साल. पैसा कब मिला है? इस साल. इस साल. इस साल. पर ये इनकम कब का है? अगर आप ये बता. नेक्स्ट ईयर. Next year. नेक्स्ट ईयर. तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन. जो मेरा पैसा कब मिला है? इस साल. पर इनकम कब का है? नेक्स्ट ईयर का. नेक्स्ट ईयर का. इसके लिए इसको यहाँ से क्या कर दिया? माइनस. तो आपको टोटल 4,000 माइनस करना है, 7,000 प्लस करना है, नेट में 3,000 प्लस करना है. आंसर 93,000. ये 93,000 हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा. तो बोलो समझ में आया या नहीं आया? आ गया. हाँ भाई. पूरा बैच क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ भैया. रिप्लाई हाँ कम भैया. है क्लास के अंदर? बोलो प्लीज. बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का. क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है भैया. क्लियर है भैया. 100%. शुड आई रिपीट या ये हो जाएगा? आप लोगों को समझ में आ गया सबको? हो जाएगा. हो जाएगा. अरे कुछ पूछता है? इस बार डायग्राम कंप्लीट करने में हेल्प करना. बताओ आरएनपी. RNP.
यार हम लोग पूरा लॉजिक दिया 1.5 क्लास का लॉजिक दिया डायग्राम के पीछे, पर एग्जाम में नहीं सोचना, एग्जाम में सीधा डायग्राम बनाना है। बताओ आरएनपी नीचे क्या लिखेगा, जल्दी जल्दी स्पीड में बताओ, जल्दी जल्दी बताओ स्पीड में, नीचे क्या लिखेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ऊपर लिखा आरएनपी, नीचे लिखेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे क्या लिखेगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे क्या लिखेगा? Subscription. एडवांस सब्सक्रिप्शन। फिर यहाँ पे क्या लिखेगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एडवांस दो एरो खींचा, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, टोटल, और यहाँ पे एक एरो खींचा। ये दो चीज ट्रिक का काम है, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट। समझ में आया? बाकी सब कुछ डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा। क्लियर है सबको? हाँ भैया। अब हमको सिंबल बता दो जल्दी से, एक बार सिंबल बता दो, क्या सिंबल डाले हम लोग? माइनस माइनस। अब इससे बेटर तरीका से हम तो नहीं बता सकते। आई होप ये तो सबको समझ में आ गया, A to Z जन को। क्लियर है? हाँ भैया। अब हम लिख रहे हैं, आप बताना हमको आराम से। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 60,000। कहाँ पे लिखेगा? जल्दी जल्दी, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ। आरएनपी में। आरएनपी कितना रुपया? 60,000। क्या ये मेरा भाई लोग सबको समझ में आ गया है क्या? हाँ हाँ भैया। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर 7,000। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर बोला, एट द एंड ऑफ बॉक्स द में ईयर। लिखेगा। बॉक्स वाला जाके कितना रुपया लिखेगा? 7,000। अभी आप प्रीवियस ईयर करंट ईयर नहीं पता है, क्योंकि जब तक प्रीवियस ईयर नहीं पता होगा करंट ईयर नहीं पता होगा। आई होप दिस इज ओके फॉर द एंटायर बैच। हाँ भैया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 4,000। अब ये 4,000 को हम जाके कहाँ लिखेंगे? माइनस एरो में और माइनस वाला जगह पे। बोल्ड बस। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप एरो पे 4,000 लिखना, ऐसे मत लिखना। पर अब हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, आउट ऑफ दिस 3,000 was received during the year। तो आपको ये एग्जाम में हमेशा ढूंढना पड़ेगा क्या कुछ बोला या नहीं बोला। अगर बोला है तो फिर वो चीज एरो में जाएगा। तो बताओ एरो में कितना रुपया जाएगा, अगर आप में से कोई बता। 3,000। 3,000 तो अगर एरो में 3,000 गया तो माइनस भी कितना होगा? 3,000। 3,000 तो 4,000 में से 3,000 मिल गया, कितना रुपया नहीं मिला अभी तक? 1,000 तो ये फॉर द ईयर कितना रुपया आएगा? 6,000 6,000 और इसी को यहाँ जाके क्या कर दिया जाए? प्लस। अब बोलो क्या मेरा भाई लोग यहाँ तक सबको क्लियर है? A to Z लोगों को। हाँ अब कोई भी ट्रिक नहीं है सम के अंदर, अब नॉर्मल है। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बस देखो और लिखो और कंप्लीट करो सम। 2,000 रुपया, तो 2,000 रुपया यहाँ जाके लिखेगा और इसको क्या कर देगा? प्लस। ठीक है। लास्ट डेटा एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। ये सब में ट्रिक नहीं आएगा, समझ गया ना भाई लोग? 8,000 रुपया, तो यहाँ पे क्या लिखेगा? 8,000 रुपया और इसको क्या कर देगा? गाइस बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी से बोलो यार, जल्दी जल्दी बोलो। लेट्स नॉट स्लो डाउन द क्लास। समझ गया भैया। एवरीवन इज 100% क्लियर? हाँ भैया। हाँ भैया। एक और एग्जांपल, at this bar I need a proper response from every single student। यहाँ बीच में क्या लिखेगा? बिना स्लो करे, बिना क्लास को जल्दी से बताओ। सुनो ना, दिस इज द टाइम टू रिप्लाई फॉर एवरी सिंगल पर्सन। क्या लिखेगा बीच में? आरएनपी। नीचे क्या लिखेगा अपन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन माइनस प्लस। प्लस। और यहाँ से एक एरो, ये एरो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एरो ही तो मेन है इस सम के अंदर। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दो एरो, क्या क्या दो एरो? प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, टोटल। करंट ईयर के लिए क्या वर्ड यूज होगा? फॉर। और बॉक्स के लिए एज एट और एज ऑन। As at or as on। समझ में आ गया सबको यहाँ तक 100%? तो इसको क्या करेगा हम लोग? क्या करेगा इसको हम लोग? प्लस।
एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन को क्या करेगा? नीड अ रिप्लाई फ्रॉम minus तो सिंबल बोलो, क्या क्या सिंबल बना? minus plus plus minus minus plus plus minus. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन। आई होप दिस इज ओके फॉर माय एंटायर बैच। और ये सब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? arrow अभी भी अगर समझ में नहीं आया ना तो यार प्रॉब्लम हो जाएगा। बोलो क्लियर, नॉट क्लियर? Clear. रिप्लाई लो है पूरा बैच का। कहना है गेट अ बेटर रिप्लाई। इज एवरीवन क्लियर? हाँ हाँ भैया। भैया Clear, clear. अब अपना कॉपी में ये एग्जांपल के लिए डायग्राम बनाओ, तो जल्दी से बनाओ अपना कॉपी के अंदर ही, हम वेट कर रहे हैं, जल्दी से बनाओ। फिर हम एग्जांपल लिखेगा, आप इसके अंदर अमाउंट डायरेक्टली भरेगा बोर्ड से देख के, आप क्वेश्चन नहीं लिखेगा। क्वेश्चन तो डीके गोल से सॉल्व करेगा ही बाद में ना। फटाफट से डायग्राम बनाओ 30 सेकेंड्स के अंदर, जल्दी से, स्पीड में। बन गया क्या? अभी तक पूरा जिंदगी लगाएगा बनाने के लिए? बन गया एवरीवन रेडी? हाँ भैया। अब हम एग्जांपल लिख रहे हैं, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको सीधा डायग्राम के अंदर अमाउंट भरना है, जल्दी जल्दी से। एग्जांपल, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 80,000। जल्दी से भर दो। कहां भरेगा? पता है आप लोगों को कहां भरेगा? RNP. आप लोग यही किया होगा मेरे हिसाब से। तो आप ये लिखो मत, सीधा अमाउंट भरो यहाँ पे। क्लियर है? गैस क्लियर, नॉट क्लियर? रिप्लाई कम है हाँ भैया। clear भैया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 7,000। कहां पे लिखेगा? अगर आप में से कोई सही बता सकते तो अच्छा लगेगा सुन के। माइनस वाला आउटस्टैंडिंग में Subscription minus. पर क्या इसको जाके अभी माइनस करेगा या नहीं? आप नहीं वेट करेगा। करेगा आरओ के लिए। अगर कुछ नहीं बोला तो आप कितना माइनस करेगा? 7,000 7,000. अब ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं, आउट ऑफ दिस 4,000 आर स्टिल इन एरियर्स। एरियर का मतलब मिला नहीं है अभी तक। तो 7,000 रुपया में से अभी तक स्टिल इन एरियर, स्टिल इज द हिंट। तो अभी तक कितना रुपया लास्ट ईयर का नहीं मिला है? अरे 4,000 4,000. 4,000 हम लोग कहाँ जाके लिखेगा? प्रीवियस Previous ईयर वाला year है outstanding तो में 7,000 में से प्रीवियस ईयर में अभी भी 4,000 है, तो आरओ में कितना आएगा? 3,000 तो 3,000. अगर एरो में 3,000 आ रहा है तो Minus माइनस 3,000 भी कितना होगा? 3,000. 3,000. अब समझा या नहीं समझा ये बता दो जल्दी। समझ गया समझ गया. समझ गया. रिप्लाई कम नहीं चाहिए बैच का, जल्दी से बताओ। हैव यू गॉट दिस वन? समझ गया भैया. हाँ भैया अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ Box द में ईयर जाएगा. 6,000 रुपया कहाँ जाएगा? आप ये जल्दी से बता सकते हैं Box हमको? में. बॉक्स में तो बॉक्स में कितना रुपया जाएगा? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या हो गया? 6,000 6,000. करंट ईयर। 2,000 तो यहाँ पे ऊपर जाके प्लस भी कितना प्लस करेगा? 2,000 अब बोलो समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? हाँ भैया. एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन 7,000। क्या करेंगे जल्दी से बता दो? यहाँ पे लिखेंगे कितना Plus. रुपया? 7,000। 7,000. और इसको क्या कर देगा? प्लस। क्या आप लोग ये Plus. सब कर पा रहे हैं खुद से? क्या कर पा रहे हैं आप लोग खुद से? हाँ भैया हाँ भैया. एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर 5,000। बताओ
81 आएगा आंसर। तो इसको 5,000 को यहाँ से माइनस कर देगा और इसके बाद अपना आंसर आएगा 81,000। 8,000 माइनस करना है, 9,000 प्लस करना है, तो नेट में 1,000 प्लस करना है यार। बोलो आप लोग को क्या समझ में आया? सब्सक्रिप्शन यही है, सब्सक्रिप्शन, दिस इज सब्सक्रिप्शन। पता नहीं लोग इतना बोलते हैं सब्सक्रिप्शन डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट है बताओ हमको इसमें। आर यू गाइस थॉरो विद द पार्ट? क्या आप लोग को समझ में आ गया सब्सक्रिप्शन? हाँ भैया। क्या सिंबल है? माइनस प्लस माइनस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज एरो है, बस ये याद रखना। और यहाँ पे 2 एरो है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। करंट ईयर के लिए क्या वर्ड होगा? फॉर। आपको एग्जाम में मेरा आवाज सुनाई देना चाहिए। करंट ईयर के लिए क्या वर्ड होगा? फॉर। बॉक्स के लिए क्या वर्ड होगा? एज। खत्म किस्सा। कोई बोलेगा अब रटवार है भाई, तो भाई 1.5 वीडियो हैज बीन गिवन ऑन द कंसेप्ट, पर एग्जाम में तो स्पीड चाहिए। And I want you guys to solve another subscription. तो सबसे पहले आप क्या बना के रेडी कर लो अपना छतरी। बीच में क्या लिखेगा जल्दी से बताओ, बीच में बताओ जल्दी से। RNP नीचे क्या लिखेगा? क्या हो गया भाई? ऊपर क्या लिखा है? RNP। नीचे क्या लिखा है? INE। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एरो, इसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन, फिर यहाँ पे क्या लिखेगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और इससे कितना एरो खींचेगा? 2। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, बॉक्स, एंड लास्ट में एडवांस सब्सक्रिप्शन। व्हाट आर द सिंबल्स दैट वी गोना पुट? गिव मी अ रिप्लाई नाउ। व्हाट सिंबल्स वी गोना पुट? माइनस माइनस प्लस माइनस। माइनस। क्या ये आप लोग पूरा रेडी है? क्या रेडी है? रेडी है? हाँ भैया। ये बना लिया ना? फटाफट से बना लिया ना? हाँ। अब हम लिखता है, इस बार हम नहीं करेगा, पूरा आप ही करेगा आराम से। गाइस आई बिलीव यू कैन हियर मी, राइट? आपको सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज? हाँ भैया। हाँ भैया। This is your issue, not my issue. Subscription received during the year. आप लोग खुद से करो, हम नहीं बोलेगा इस बार, आप भी मत बोलो, लास्ट में डिस्कस करेगा। Advance subscription at the beginning 3,000. एक लाख एक हजार। 1,01,000। कुछ लोग हमको ऑलरेडी आंसर बोल रहे हैं, दैट इज रियली गुड, रियली गुड। हम वेट कर रहे हैं सो दैट एवरीवन कैन डू दिस। 1,01,000। डन। तो आप लोग हमको बताएगा, बताओ आरएनपी के अंदर क्या लिखेगा? दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर। 1,00,000। अपने से जल्दी कोई सम नहीं कर सकता। हो गया 1,00,000। डन। अब बिगनिंग ऑफ द ईयर कितना रुपया आउटस्टैंडिंग है? स्पीड में बता दो जल्दी से। 5,000 पूरा माइनस हो गया क्या? नहीं, क्योंकि एरो का डेटा दिया हुआ है। एरो में बताओ कितना रुपया? 4,000। तो अगर एरो में 4,000 है तो यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा? 4,000। और मेरा प्रीवियस ईयर कितना बन जाएगा? 1,000। अब बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। बॉक्स में 7,000। बॉक्स में 7,000। करंट ईयर में 6,000 प्लस 6,000। रिदम सेट है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3,000 रुपया, तो यहाँ पे प्लस कितना होगा? 3,000। और एंड ऑफ द ईयर कितना रुपया है? 4,000। माइनस माइनस 4,000। 1,01,000। तो 8,000 माइनस वही 9,000 प्लस, तो आंसर कितना बन गया? 1,01,000। समझ में आ रहा है सबको? हाँ भैया।
एक एग्जांपल और क्या बना लो सबसे पहले तो अपना डायग्राम। डायग्राम में क्या लिख रहा है अपन? RNP I&E क्या हो गया, भूल गया क्या डायग्राम? यहाँ पे अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ से क्या खींचेगा, थोड़ा सा बोलो जल्दी से। एरो arrow, क्या चीज का सिंबल? माइनस। माइनस प्लस उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेगा अगर आप बोल सकते हैं तो एडवांस हमको? सब्सक्रिप्शन क्या चीज का सिंबल? प्लस। प्लस plus, फिर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना एरो खींचेंगे अपन? प्लस 2 एरो प्रीवियस ईयर करंट ईयर बॉक्स नीचे प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड द बॉक्स, बॉक्स एंड लास्ट में प्लस माइनस। सिंबल डाल देगा सब लोग। बना लिया भैया। ठीक है, ठीक है। हाँ भैया, हाँ भैया। हम आपको क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं, आप खुद से सॉल्व करेगा, हम नहीं करेगा। आप खुद से कर सकते हैं ना, आइडिया लग गया ना कैसे करते हैं? हाँ हाँ भैया। Subscription received during the year 80,000. Subscription outstanding at the beginning of the year. एग्जाम में वो डेट्स लिख के देगा, तो जब नेक्स्ट क्लास वापस करवाएगा तो डेट्स के साथ एग्जाम्पल करवाएगा। ठीक है, 26,000 subscription outstanding at the end of the year 6,000 रुपये। Subscription received in advance at beginning 15,000, at ending 10,000। अब एक चीज और लिखा हुआ है, बोला हुआ है सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹2,000 आर स्टिल इन एरियर्स। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन पढ़ के ही सम किया करो हमेशा। ये आपका क्वेश्चन है पूरा का पूरा, आराम से स्लो करके 3 मार्क का सम आया हुआ है बोर्ड में, स्लो करके राइट करना है अपने को, 3 मार्क्स। $65,000. 65,000, आंसर आना शुरू हो गया ऑलरेडी लोगों का। दिस इज व्हाट आई वांट। 65,000. 65,000 people are replying, people are studying, that is brilliant। आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज है। हो गया आप लोग का डिस्कशन करें एक बार फिर। हाँ भैया. आरएनपी में क्या आएगा? आरएनपी में क्या आएगा? रिप्लाई योर ड्यूटी। 80,000. सॉलिड, बहुत ही बढ़िया भाई लोग। अब आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना रुपया है? 26,000. अब पता है लोग क्या क्या होगा, इसको तुरंत माइनस कर देगा। गलत, पहले ढूंढो क्या कुछ बोला हुआ है, क्या हाफ बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है? 2,000 are still in it. If 2,000 are still in arrears, तो भाई लोग एरो में कितना रुपया आएगा अगर आप हमको बताओ? 24,000, 24,000. तो मेरा प्रीवियस ईयर कितना हो गया? गलत नहीं चाहिए। 2,000, 2,000. तो ये 24,000 को यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे? इज्जत से Minus. माइनस से। Minus. और ये 2,000 जो है ये प्रीवियस ईयर में रह जाएगा। हो गया, हो गया। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर बॉक्स में 6,000, कितना रुपया आएगा? 6,000। 6,000, करंट ईयर कितना रुपया आएगा? 4,000, 4,000. तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा? 4,000, 4,000. क्या कोई भी यहाँ तक गड़बड़ किया है? कुछ भी राइट कर रहे हैं यहाँ तक? करेक्ट. राइट. Beginning का 15 बोला है और एंडिंग का 10,000 बोला है, तो 15,000 को क्या कर देंगे? प्लस, और 10,000 को क्या 10,000 माइनस, माइनस। तो इन शॉर्ट 24 और 34 माइनस करना है, 19 प्लस करना है, 100 में 15 माइनस करना है, तो आंसर अपना कितना बन जाएगा? 65,000। 65,000, खत्म, दैट्स द सम। क्या आप लोग?
ये सम आपको कितना मार्क्स देगा एग्जाम में? गाइस राइट हुआ है या नहीं हुआ बताओ, आप लोग बताएगा हमको ना। राइट Right हुआ है। Try to add here. आज के लिए एक लास्ट एग्जांपल, आरएनपी नेक्स्ट क्लास करेगा, हम आपको ना एक पूरा पीडीएफ बना के देगा जिससे हम सम्स करवा रहे हैं एनपीओ का। तो हम आज आपको पीडीएफ भेज देगा, आप प्रिंट आउट निकलवा लेना या फोन से देख लेना एज पर योर कन्वीनियंस। तो बिफोर द नेक्स्ट क्लास हैव दैट पीडीएफ प्रिंटेड या कुछ कर लेना, बेटर होगा आपके लिए। आई होप दिस इज क्लियर। तो पूरा सारा सम उसी ऑर्डर में करेगा। आई होप दिस इज ओके फॉर द एंटायर बैच। क्या बोला हम अभी? हाँ भैया। एक एग्जांपल कर रहे हैं और क्या बना लो पहले आप खुद से बनाओ। क्या बनाएगा छतरी? क्या लिखेंगे बीच में? आरएनपी। नीचे क्या लिखोगे? आंसर नहीं आया? इनकम एंड एक्सपेंस। Income and expense. स्पीड में लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन। आई एक्सपेक्ट कि यार सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं जो लोग क्लास कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2 एरो, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, बॉक्स एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब क्या सिंबल डालेगा आप जल्दी से बता दीजिएगा प्लीज मेरे को एक बार। माइनस प्लस प्लस माइनस। रेडी है? हाँ भैया। हम लिखते हैं यहाँ पे, आप हमको आराम से करके देना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी गलत नहीं करेगा मेरा बैच से। 2 लाख रुपया, ठीक है? हाँ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 5000 ब्रैकेट में, out of which 3500 was received during the year. Subscription in advance at the beginning 3000, at the end 4100. Subscription outstanding for the year टेक योर टाइम, आराम से कैलकुलेट करो। 3 मार्क है, 6 मिनट मिलता है बोर्ड्स में, हड़बड़ी नहीं करना है आपने। आंसर आ जाए तो यू कैन स्टार्ट यूजिंग द चैट बॉक्स ऑल्सो इफ यू वांट टू। हो गया। People can message me the answer if they want to. ये सर कुछ तो गलत है। हर्षित कुछ गलत है। दृष्टि आपका राइट है, रश्मि राइट है, प्रियंका कुछ तो गड़बड़ है आपका। हर्ष आपका राइट है, हर्ष दोनों हर्ष राइट है आपका। खुशी कुछ गड़बड़ है, तीनों हर्ष राइट है, 3 हर्ष है एक्चुअली। राहुल राइट है, महक राइट है, संध्या राइट है, साक्षी राइट है, यश राइट है, इशिता राइट है, गौतम राइट है, याशी राइट है आपका, अमन राइट है, महक राइट है आपका, भाविक राइट है आपका, प्रियंका, केसर, हर्षित जल्दी करने के चक्कर में गड़बड़ किया, वापस पढ़ के करो एक बार। नीरज राइट है, शेफाली राइट है, प्रियंका राइट है, हर्षित राइट है, ठीक है परफेक्ट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, जिन लोग से नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर रहे हैं, अब हमको बताना। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो ये 2 लाख रुपीस कहाँ जाएगा अगर आप हमको रिप्लाई कर सकता है? आरएनपी। आरएनपी
आराम से देख देख के करो ना, सम को जल्दी नहीं है। अब सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना रुपया है? 5,000. 5,000. और इसमें से मिला कितना रुपया है? 3,500. 3,500. माइनस होगा 3,500। 500. मेरा प्रीवियस ईयर कितना बन गया? 1,500. 1500. अब एडवांस में बिगिनिंग में कितना रिसीव हुआ है? 3,000. 3,000 तो 3,000 रुपया को यहाँ से क्या कर दिया जाए? Plus. फिर सब्सक्रिप्शन एंड में कितना रुपया आया? 4,100. 4,100. 2,100. यहाँ से क्या कर Minus. दिया जाएगा? माइनस। And the last data which I wanted right from my entire batch. Current year Current year 6,400. Current has तो plus करेगा। 4 बोला है 4, तो ये कहाँ जाएगा? Current year. Current year 6,400. तो टोटल 7,900. 7,900. अंदर में प्लस कितना होगा? 6,400. 6,400. Which is of the current year. हो गया, बस यही तो करना है। 2 चीज प्लस 2 चीज माइनस, आंसर आ गया। कितना आंसर आया? 201। 2,01800. That's it. क्या आपको ये आइडिया लगना शुरू हो गया क्या है क्या नहीं है? हाँ भैया। हाँ भैया. तो कल का क्लास में हम लोग 2 टॉपिक करेंगे, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ आरएनपी एंड सब्सक्रिप्शन का सम। तो आई शेयर द पीडीएफ विद यू गाइस, आप लोग प्रिंट आउट या फिर उसको डाउनलोड करके रख लेना एंड वी कैन सॉल्व फ्रॉम दैट। आई थिंक वो बेटर होगा आप लोग के लिए, फिर बुक का झमेला नहीं होगा। आई होप दैट इज ओके फॉर एवरीवन। तो वही पीडीएफ हम लोग का पूरा एनपीओ होगा, उसके अंदर सैंपल पेपर का सम जो भी डालना सारा डाल देगा मैं एक ही बार में। इज दिस ओके? ठीक है भैया। हाँ भैया. हाँ भैया. मास्टर पीडीएफ होगा एनपीओ के बारे में, इसमें सब कुछ होगा A to Z, असाइनमेंट सब कुछ, सैंपल पेपर सब कुछ A to Z थिंग्स। आई होप दैट इज ओके फॉर द एंटायर बैच। ठीक है, फिर आप अलग पेपर करेगा, फिर डिस्कशन करेगा, सेंस नहीं बनता, सब क्लास में करवा देगा। ठीक है भैया, हाँ, डिसोल्यूशन का एक डाउट था। डिसोल्यूशन का डाउट के लिए वेट कीजिएगा प्लीज। आपको और क्लासेस जब मिलेगा उसके बाद हम आपका डाउट लेगा। वेट फॉर फ्यू मोर क्लासेस टू हैपन। ठीक है भैया। थैंक यू गाइस।